Very good afternoon to all of you. This is Abhilasha Nahata from Layal Public School. I'm your social science teacher. So class, today we all are going to start our new chapter of your geography textbook. The name of the chapter is Agriculture. This is chapter number 4 of your book. So agriculture, you all have heard this term prior. Okay, you heard about agriculture farming in the newspaper, you heard about in the news channels, or in your prior classes also you heard about it, agriculture. Okay, so basically we will talk about types of agriculture in this chapter. What is the importance of agriculture in our life, uh, how we can how we can enhance the skills of agriculture. We will talk about all these things in this chapter. Okay. So Gurpreet, Madho, and Tina were walking through the village where they saw a farmer tilling land. The farmer told them that he was growing wheat and had just added manure to the soil to make it more fertile. He told the children that the wheat would fetch a good price in the mandi, from where it would be taken to factories to make bread and biscuits from flour. So now Gurpreet, Madhu and Tina, they are like very good friends, and they were walking, they were roaming through the village, and they saw a farmer tilling land. Tilling land means preparing land for the agriculture. He is प्लोइंग द लैंड, ठीक है, लैंड को प्लो कर रहा था, लैंड को प्रिपेयर कर रहा था, किसके लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. So that farmer, that cultivator told them that he was growing wheat and had just added manure to the soil. कि मतलब वो wheat grow करेगा और इस manure जो fertilizer या फिर जो आप खाद बोलते हो, ठीक है, तो वो सॉइल में ऐड करेगा जिससे कि सॉइल जो है बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाएगी. आफ्टर दैट ही टोल्ड द चिल्ड्रन दैट द wheat would fetch a good price in the mandi. Whenever he after harvesting the crop, he would sell the wheat in the mandi, and it will fetch a very good price. It will give them very good price. एंड फ्रॉम वेयर इट वुड बी टेकन टू फैक्ट्रीज, ठीक है, जो बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह हैं वहां पे लेके जाया जाएगा. इसे जैसे कि बिस्किट्स है, बिस्किट्स जो है फ्लोर आपके आटे से ही बनता है, ठीक है, मैदे से बनता है, एंड मैदा जो है व्हीट से ही बनता है. तो वो व्हीट जो है बिस्किट इंडस्ट्री, ब्रेड और बिस्किट इंडस्ट्रीज में ये जो व्हीट है फैक्ट्रीज में जाएगा मंडी से, ठीक है. So that this transformation from a plant to a finished product, excuse me, this transformation from a plant to a finished product involves 3 types of economic activities. These are primary, secondary, and tertiary activities. So in this in the market economy, there are 3 types of economic activities. Economic activities, what are economic activities? Economic activities are those activities which we are doing for earning our livelihood. Okay, whatever the activities we are doing for our livelihood, for earning our livelihood, those activities are known as economic activities. And in this world, these economic activities are divided into 3 sectors or 3 activities, that is primary, secondary, and tertiary activities. Okay, so primary activities include all those connected with extraction and production of natural resources. Primary activities, primary, what do you mean by primary? Primary means something which we start or something which we begin. So it includes all those activities which connected with extraction means कि आप नेचर से डायरेक्टली लैंड से आप क्या कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर आप लैंड से नेचुरल रिसोर्सेज से ही कुछ गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, जिसमें आप नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हो. वो सारी एक्टिविटीज आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर आती है. फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर,
ठीक है, एग्रीकल्चर, इन एग्रीकल्चर व्हाट आर द नेचुरल, वी नीड नेचुरल रिसोर्सेज फॉर प्रोड्यूसिंग एनी क्रॉप. फॉर एग्जांपल फॉर प्रोड्यूसिंग व्हीट वी नीड सीड्स. ऑब्वियसली सीड्स जो है वो चाहिएगा, बट सीड्स आप बोलोगे मैम नेचुरल नहीं है सीड्स. तो फॉर नेचुरल, फॉर एग्रीकल्चर, फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स वी नीड लैंड, वी नीड वाटर, वी नीड सनलाइट. बेसिकली जो आपके प्रोडक्ट होते हैं, जो बेसिक प्रोडक्ट्स होते हैं, या बेसिक जो हमें प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए जो जिन चीजों की जरूरत होती है वो नेचुरल होती है. ठीक है, तब एग्रीकल्चर के लिए हमें लैंड, सॉइल, वाटर, सनलाइट की बहुत जरूरत पड़ती है. अगर ये नहीं होगा तो हम एग्रीकल्चर या कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते हैं. तो it includes primary activities, includes all those activities which produce goods by using natural resources or by extracting natural resources. ठीक है, जैसे फिशिंग है, फिश हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं रिवर से. रिवर इज अ नेचुरल रिसोर्स, और हम रिवर से या फिर सी से हम फिश को डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. तो ये आपका प्राइमरी एक्टिविटी है. गैदरिंग, हम डायरेक्टली फूड, जैसे फॉरेस्ट से हम हनी को गैदर कर रहे हैं, हम वुड को गैदर कर रहे हैं. तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज. सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कनेक्टेड विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड, वीविंग ऑफ क्लॉथ आर एग्जांपल्स ऑफ this activity. Okay, now secondary activities includes all those activities in which we convert raw material into useful goods. For example, we extracted iron from the we extracted fish from the river. Okay, after that fish फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिश इनटू द फिश ऑयल, या फिर कोई भी फिश प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने उस इंडस्ट्री को भेजा. तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है कोई फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाला है. ठीक है, तो सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज में हम ये एक प्रोसेसिंग एक्टिविटीज होती है. यहाँ पे हम रॉ मटेरियल को या फिर कोई भी दूसरे फिनिश्ड गुड को, किसी दूसरे प्रोडक्ट को हम यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, जैसे स्टील है, हमने माइनिंग से आयरन को क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया. बट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज वगैरह में हम आयरन को क्या कर रहे हैं, आयरन को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और आयरन से हम क्या कर रहे हैं, स्टील को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. हम व्हीट है, हमारे पास व्हीट है, हम बेकिंग इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं, हम ब्रेड बना रहे हैं या फिर बिस्किट बना रहे हैं. हमारे पास कॉटन है, एग्रीकल्चर से हमारे पास कॉटन आया, पर हम इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम क्या कर रहे हैं, कॉटन को वीव कर रहे हैं. सो ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज वेयर वी कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स. ओके, so primary and secondary activities both focused on producing goods, but tertiary activity, this is third type of activity, third type of economic activity. It focuses on providing services, it provides support, it provides services to the primary and secondary sectors through services. ठीक है, जैसे कि I am a teacher, I am not producing any good, but I am giving my services to you. I am educating children. Okay, I am educating kids, I am educating my students, I am giving my support, I am giving my services to them. Okay, doctor, what doctor is doing, doctor is not producing any good, but rather he is giving his services. तो इकोनॉमिकली जब हम किसी को सपोर्ट करते हैं, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में भी, टेक एन एग्जांपल ऑफ ओरियो बिस्किट. ठीक है, ओरियो बिस्किट का एक मैन्युफैक्चर हम देखते हैं कि कैसे मैन्युफैक्चर होता है. यहाँ पे वीट ग्रो हुआ, फार्मर ने वीट ग्रो किया. ठीक है, फिर वीट हार्वेस्ट करने के बाद वो जो है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, अब वीट को अब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू लेके जाएगा. ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू उन्होंने इंडस्ट्री में वो लेकर गए, देखो इंडस्ट्री में वो लेकर गए. इंडस्ट्री में वो जो वीट है फ्लोर में कन्वर्ट हुआ, फ्लोर से फिर उसके अंदर जो भी एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स थे लाइक ऑयल, शुगर, एवरीथिंग उन्होंने मिक्स किया, और एक प्रोसेसिंग से क्या किया, बिस्किट्स बना लिया. अब वो बिस्किट रेडी है, पैकेजिंग
रेडी है। फिर अगेन ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमने क्या किया, वो उस बिस्किट को लेकर गए, ठीक है, और एडवर्टाइज भी किया हमने बिस्किट को, लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने एडवर्टाइजिंग भी किया, और एक जनरल स्टोर में ये यहाँ पे भेज दिया गया। तो ये प्राइमरी सेक्टर हो गया, ये सेकेंडरी सेक्टर हो गया, और ये टर्शरी सेक्टर हो गया। ये वाला टर्शरी सेक्टर है, ये भी टर्शरी सेक्टर है। तो टर्शरी सेक्टर अपना सपोर्ट देता है, जैसे कि आपका ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, या फिर कम्युनिकेशन है, या आप बोल सकते हैं बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ टर्शरी सेक्टर्स। दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, दे आर प्रोवाइड टर्शरी एक्टिविटीज प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोवाइड सर्विसेज टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। So I believe all these economic activities are pretty much clear to you. In your further classes, you will read more about these types of activities further. ठीक है, आप क्लास 10 में आपका पूरा चैप्टर है इन एक्टिविटी, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लेके, तो आप पढ़ेंगे इनके बारे में। तो प्राइमरी एक्टिविटी समथिंग जो बिगिन करते हैं, हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, या नेचुरल रिसोर्सेज से जो प्रोडक्ट को बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और वो सारी एक्टिविटीज प्राइमरी एक्टिविटीज होगी, जैसे कि एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, ऑल दीज, माइनिंग, ऑल दीज कम्स अंडर प्राइमरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्या होगा, इट कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। सेकेंडरी एक्टिविटी, ठीक है। एक चीज और, प्राइमरी एक्टिविटीज को का दूसरा नाम है एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड एक्टिविटी भी बोलते हैं हम प्राइमरी एक्टिविटी को। सेकेंडरी एक्टिविटी को हम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी बोलते हैं, या सेक्टर बोल दीजिए। और टर्शरी एक्टिविटी को हम सर्विस एक्टिविटी या सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। Got it? So these are the 3 economic activities. Now agriculture, this chapter is related to the agriculture, so we will focus more on agriculture. We are not going to discuss all these things furtherly in a very enhanced manner. We will discuss about agriculture, basically discuss about agriculture in this chapter. So before moving forward, we should know what how this word agriculture, from where this word agriculture derived from. So the word agriculture is derived from the Latin words ager, or you can say agri. It means soil. Ager or agri जिसका मतलब होता है soil, and culture means cultivation. So ager means soil and culture means cultivation. So it means cultivation of soil. Agriculture is a derived from the Latin word ager or agri, which means soil, and culture means cultivation, and agriculture is derived as cultivation of soil. Okay, so now agriculture is a primary activity. Obviously it is a primary activity because we are producing goods with the help of the natural resources. We are producing wheat, different types of crops, different types of vegetables, fruits, flowers, etc. with the help of natural resources. We are using land, soil, water, sunlight. We all are using all these products for producing any good. So it is a primary activity. It includes growing crops, fruits, vegetables, flowers, rearing of livestock. Yes, agriculture में livestock को भी rear करना आपका agriculture में आता है. In the world, 50% of the persons are engaged in agricultural activity. In the whole world, 50% of persons, ठीक है, 50% population जो है agricultural activities में engaged है, directly और indirectly agriculture activity करती है. And 2/3 of India's population is still dependent on agriculture. They are directly or indirectly dependent on agriculture for their living. 2/3 population, देखिए 70% population जो है इंडिया की, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है अपनी लिविंग के लिए, डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, वो अपनी लिविंग के लिए कहाँ पे, किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर नहीं होगा तो वो अपनी लाइफ नहीं अर्न कर पाएंगे। Favorable topography of soil, climate are vital for agricultural activity. The land on which the crops are grown is known as arable land.
In the map, you can see in figure 4.1, there is a map, and in that map, we can see that agricultural activity is concentrated in those regions of the world where suitable factors for the growing of crops exist. अब topography क्या होता है? Physical characteristics of an area of an land is known as topography. ठीक है? तो देखिए, फेवरेबल टोपोग्राफी, फिजिकल जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी एरिया का, तो वहां की जो टोपोग्राफी है, वहां की सॉइल, वहां का क्लाइमेट जो है ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए। तो फेवरेबल होना चाहिए, जो भी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं उसके फेवर में होना चाहिए। और ऐसी लैंड जिसपे द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन, एक ऐसी लैंड जिसपे हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, उस लैंड को हम क्या बोलते हैं? उस लैंड को हम एरेबल लैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? एरेबल लैंड बोलते हैं। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड। So in this in this map, just look at this map, whatever the green portions you are looking at, all these एरियाज आर एरेबल लैंड। पूरे वर्ल्ड में मतलब ये जितना भी ग्रीन पोर्शन देख रहे हो ये एरेबल लैंड है, मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग सेक्टर है ये, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग लैंड है ये। जस्ट लुक एट इंडिया, इंडिया में ये पूरा इंडिया ही हमें देखने को मिलता है कि काफी एग्रीकल्चरली रिच एरिया है ना। ये देखो, ये रहा इंडिया का कुछ पार्ट, देखो आप ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का देखो, ऑस्ट्रेलिया का सदर्न पार्ट देखिए, ठीक है, अफ्रीका के कुछ पार्ट्स देखिए, ये देखो यूरोप का काफी एरिया है। तो दीज आर एग्रीकल्चरली रिच एरियाज और ये एरेबल लैंड है जहां पे हम क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ just look at this do you know box, ठीक है। this there are different types of culture, ठीक है। agriculture, the science and art of cultivation on the soil, raising crops and rearing livestock is called agriculture, and it is also called farming. science and art of cultivation, अगर हम सॉइल में कोई भी प्रोडक्ट को कल्टीवेट कर रहे हैं, हम कुछ भी कल्टीवेट कर रहे हैं या फिर क्रॉप्स को कल्टीवेट कर रहे हैं या लाइफ स्टॉक्स को भी रियर कर रहे हैं ना, लाइफ स्टॉक्स मतलब कैटल्स वगैरह हो गए, उनको हम पाल रहे हैं, डोमेस्टिकली यूज कर रहे हैं और उनके प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, वो भी एग्रीकल्चर में आता है, ठीक है। तो वो उन सबको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज फार्मिंग। नेक्स्ट इज सेरिकल्चर, commercial rearing of silkworm. Commercial, whenever the term comes commercial, it means profit making. जब हम profit making के लिए silkworms को rear करते हैं, पालते हैं, ठीक है, इनको कुकून्स में हम पालते हैं, तो इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर, ठीक है, उनको हम सेरिकल्चर बोलते हैं। और ये जो है फार्मर्स की इनकम को भी काफी सप्लीमेंट करते हैं, ऐसे फार्मर्स जो सिल्क वॉर्म्स को रियर करते हैं और उन्हें बेचते हैं जिससे कि सिल्क बनता है, that is known as sericulture. Next is pisciculture, breeding of fish in specially constructed tanks and ponds. Breeding of fish in specially constructed tanks and ponds. When we artificially rear fish, when we artificially breed fish, ठीक है, कोई special constructed tanks होते हैं, ponds होते हैं जिसमें हम fish को breed करते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियली ब्रीड करते हैं। आर्टिफिशियली हम फिश को क्या करते हैं, फिश अपनी जो है एग्स को ले करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पिसिकल्चर। नेक्स्ट इज विटिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स इज नोन एज विटिकल्चर, ठीक है, ग्रेप्स का पूरा विनयार्ड होता है, ठीक है, और हम वहां पे खाली ग्रेप्स को ही कल्टीवेट करते हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पस, दैट इज नोन एज विटिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज, जब हम कमर्शियल यूज के लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स को कल्टीवेट करते हैं, ग्रो करते हैं, उसको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप घरों पे जो सब्जियां, फूल वगैरह ग्रो करते हो उसको आप हॉर्टिकल्चर नहीं बोलोगे, बिकॉज you are growing those vegetables, flowers and fruits for your own purpose. You are not growing that vegetables, flowers for the purpose of selling in the market. You are growing it for your own consumption, ठीक है। तो अब commercial use, commercial is the term which we are using for selling in the market, which we are using for making profits. Okay, so I believe all these important terms are very much clear to you. Next is farm system, ठीक है, farm system, agriculture, farm system, whatever the activities we do
in agriculture or in farming, all those activities collectively known as farm system. ठीक है, so agriculture और farming can be looked at as a system. एक सिस्टम की तरह है. द इम्पोर्टेंट इनपुट्स, व्हाट आर इनपुट? समथिंग विच वी पुट इनटू, ठीक है, जिसके अंदर हम कुछ डालते हैं. समथिंग विच वी पुट इनटू, वो क्या होता है? इनपुट होता है. टू मूव, एंड समथिंग विच वी something which we put into is known as input, and something which we out into or get back from that particular field or particular area, that is known as output. जिससे हम बाहर निकालते हैं वो क्या है? आपका आउटपुट है. तो इनपुट्स क्या है in agricultural activities? The important inputs are seeds, fertilizers, machineries and labor. ठीक है. अब देखिए, लैंड, एक एग्रीकल्चर, हम क्या कर रहे हैं? एक क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, तो उसमें हम सीड्स को भी डालेंगे. सीड्स को डालते हैं ना, इनपुट इन करते हैं. फर्टिलाइजर्स भी यूज कर रहे हैं, मशीनरी का भी यूज कर रहे हैं, हम लेबर का भी यूज कर रहे हैं. तो वो क्या है? इनपुट है. जस्ट लुक एट दीज फिगर्स. Okay, just let me explain these terms first. Some of the operations involved plowing, sowing, irrigation, weeding and harvesting. This is the process. हम ये process कर रहे हैं. The output from the system includes crop, wool, dairy and poultry products. और ये सब output क्या निकल के आया? हमारे पास main product क्या निकल के आया? वो आया crops, wool, dairy, poultry products, etc. ठीक है. I will explain you. Just give me a minute. Let me explain these two figures to you. Figure 4.2, the farm system of an arable land. Arable land, the land where we grow crops are known as that is known as arable land. ठीक है. Inputs, machinery, seeds, chemicals में fertilizers, pesticides, etc. ये सब chemicals में आ जाता है. ये inputs है. Processing क्या कर रहे हो? आप मशीनरी का यूज कर रहे हो. You are sowing the seeds. You are spraying the you are weeding. You are spraying. ठीक है. ये क्या है? आपका प्रोसेस है. एक आप एक प्रोसेस में चल रहे हो. आउटपुट्स क्या आया? आपके पास क्रॉप्स ग्रो होके आई है. ये आपका आउटपुट है. ठीक है. अब फिजिकल इनपुट्स क्या क्या है? फिजिकल इनपुट्स एंड ह्यूमन इनपुट्स भी लगते हैं. फिजिकल इनपुट्स में जितने भी नेचुरल है, चाहे रेनफॉल, सनशाइन, टेम्परेचर, सॉइल, स्लोप, टोपोग्राफी, यू कैन से इन वन वर्ड इट इज नोन एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट और सनशाइन. ठीक है, सनशाइन. तो ये फिजिकल इनपुट है. और ह्यूमन इनपुट्स में क्या क्या आएगा? स्टोरेज. हमें अब क्रॉप्स ग्रो हुआ है तो हमें उसे रखना भी है, तो स्टोरेज हो गया, लेबर हो गया, मशीनरी हो गई, केमिकल्स हो गया. ऑल दीज आर द ह्यूमन इनपुट्स बिकॉज ह्यूमन मेड ऑल दीज थिंग्स एंड ही इज दैट ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर input by humans. They made it, all these products are made by humans and all these products are used by humans. ठीक है, वो humans ने बनाया है और humans यूज कर रहे हैं फॉर yielding. ठीक है, फॉर मोर एंड मोर yielding. अब देखिए, तो इनपुट समझ आया सबको क्या क्या है? लैंड, सॉरी, मशीनरी, सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ऑल दीज आर इनपुट्स. लेबर वो भी इनपुट है. और वो प्रोसेस क्या है? प्लोइंग, सोइंग, स्प्रेइंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन, ऑल दीज आर ऑपरेशंस और एक प्रोसेस है. आफ्टर दैट आउटपुट क्या निकल के आ रहा है? क्योंकि खाली एग्रीकल्चर में हम क्रॉप्स को ही ग्रो नहीं करते हैं, एनिमल्स को भी रियर करते हैं. तो देखिए, क्रॉप्स आ रही है हमारे पास, शीप को कर रहे हैं तो हमारे पास वूल आ रही है, डेयरी भी आ रहा है, डेयरी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, पोल्ट्री फार्मिंग है, से हमें eggs भी मिल रहे हैं. तो all these are the outputs of the farm system. Okay. So types of farming. So as you all know, farming is practiced in all over the world. Various types of farming is practiced in the world. So टोपोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इरिगेशन कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये सारी डिमांड्स है. लेबर, वहां पे लेबर कैसा है, सीड्स की क्वालिटी कैसी है, कितना अवेलेबिलिटी है, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है फार्मिंग में. सो फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड depending upon the geographical conditions, demand of produce, labor and level of technology. Farming can be classified into two main types. These are subsistence farming and commercial farming.
तो डिफरेंट डिफरेंट वेज में वर्ल्ड वाइड क्या है फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है। ज्योग्राफिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है कि प्रोड्यूस कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, लेबर लेबर की डिमांड क्या है, टेक्नोलॉजी आपके पास क्या क्या है, ये सारी चीजें जो है फार्मिंग में काफी मैटर करती है, फार्मिंग में काफी डिपेंड करती है, फार्मिंग जो है इन सब पे डिपेंड करती है। सो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कौन कौन सी होती है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। So subsistence farming, before going through subsistence farming and commercial farming, just go through this interesting thing. We will talk about organic farming. What is organic farming? In this type of farming, organic manure and natural pesticides are used instead of chemicals. No genetic modification is done to increase the yield of the product. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में नॉर्मली व्हाट वी डू, वी यूज ऑर्गेनिक मैन्योर, we use humus, we use natural pesticides, we use natural insecticides instead of chemicals, and there is no genetic modification. आज के टाइम पे क्या होता है, अभी ग्रीन, हम थोड़ा बहुत HYV सीड्स के बारे में पढ़ेंगे बाद में, तो जो जिस ऐसी सीड्स जिसमें कोई न्यूट्रिएंट की अगर कमी होती है, अगर लैकनेस होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजीज के थ्रू जेनेटिकली हम क्या करते हैं, वो न्यूट्रिएंट उस सीड में डाल देते हैं। तो बट ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है, यू यूज दैट पर्टिकुलर सीड, ठीक है, कोई भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं होता है उसमें, कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं होता है, या जिससे कि क्रॉप को हम क्या है, क्रॉप में क्रॉप जो खेती है आपका, यील्ड है, जो प्रोडक्शन है, वो इंक्रीज हो सके, ठीक है। तो ये होता है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो नाउ कम बैक टू सब्सिस्टेंस फार्मिंग। Subsistence farming and commercial farming. This type of farming is practiced to meet the needs of the farmer's family. Traditionally, low levels of technology and household labor are used to produce on small output. Subsistence farming can be further classified as intensive subsistence and primitive subsistence farming. So this type of farming, ये जो इस टाइप की ये जो फार्मिंग है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है, नॉर्मली फार्मर अपनी फैमिली की नीड्स को, या फिर फैमिली कंजम्पशन के लिए इस टाइप की फार्मिंग को प्रैक्टिस करते हैं। बहुत ही लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। हाउस होल्ड लेबर मतलब घर वाले ही मिलके, आपके बेटा बेटी वाइफ सब मिलके क्या करते हैं, वही लेबर हो जाते हैं, वही प्रोड्यूस करते हैं। बहुत ही स्मॉल आउटपुट होता है, ज्यादा आउटपुट नहीं होता है, क्रॉप्स का जो आउटपुट है ज्यादा नहीं रहता है, बहुत ही स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड में इस टाइप की फार्मिंग को किया जाता है। सबसिस्टेंस फार्मिंग को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक तो है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा है आपका प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या है, द फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। एक बहुत ही छोटा प्लॉट जो है फार्मर कल्टिवेट करता है, बहुत ही सिंपल टूल्स यूज करता है, ज्यादा से ज्यादा लेबर का यूज करता है। Climate with large number of days with sunshine and fertile soils permit growing of more than one crop annually on the same plot. एक ही प्लॉट है, पर अगर क्लाइमेट अच्छा है और ज्यादा ब्राइटनेस है, सॉइल बहुत फर्टाइल है, तो एक से ज्यादा भी क्रॉप जो है एक ही प्लॉट पे ग्रो की जाती है एनुअली। जो राइस है, राइस इज द मेन क्रॉप, अदर क्रॉप्स इंक्लूड wheat, maize, pulses and oil seeds. Rice is the main crop and other than rice, wheat, maize, भुट्टा सुना होगा आपने, कॉर्न सुना होगा, wheat, maize, pulses, oil seeds, इनको भी ग्रो किया जाता है। Intensive subsistence agriculture is prevalent in the thickly populated areas. ऐसी areas जहाँ पे population बहुत ज़्यादा है, it is very prevalent there, it is very popular there, and especially on the monsoon regions, ठीक है, of Southeast Asia, East Asia, जैसे इंडिया में आपका जो नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया है, बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को काफी ज्यादा पॉपुलर है, यहाँ पे ग्रो भी किया जाता है, ठीक है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर के बारे में ये याद रखना कि स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड में ग्रो होता है, बट थिकली जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन होती है और जहाँ की लैंड बहुत फर्टाइल होती है, वहां पे इस टाइप की एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है।
प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नॉमेडिक हर्डिंग आता है. इट इंक्लूड्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नॉमेडिक हर्डिंग. We already talked about shifting cultivation in one of your histories chapter, tribal tycoons and the golden age. We talked about shifting cultivation in that chapter. So shifting cultivation एक जस्ट बताती हूँ आपको, बाकी फर्दर हम कल बताएंगे, कल पढ़ेंगे इसके बारे में. It means when what you do farmer what farmer do, वो लैंड को क्लियर करता है, ट्री टॉप्स को क्या करता है, कट कर देता है और वहां पे एग्रीकल्चर कर देता है. बट आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप, उस लैंड को वो क्या करता है, जो भी लेफ्ट आउट आपके प्लांट्स होते हैं उनको वो बर्न कर देता है और कुछ टाइम के लिए उस लैंड को फैलो छोड़ देता है, मतलब फैलो रख देता है, मतलब खाली छोड़ देता है, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर अ वाइल, जिससे कि वो जो ऐश है उसमें पोटैश काफी होता है, मैग्नीशियम काफी होता है, जिससे कि वो सॉइल जो होती है वो वापस से फर्टाइल हो जाती है. ठीक है, तो टू टाइप्स प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस में आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन आते हैं, नॉमेडिक हर्डिंग आते हैं. तो मध्य प्रदेश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बेवार भी कहा जाता है, एंड झूमिंग, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूमिंग कहा जाता है, मेक्सिको में मिल्पा मिल्पा कहा जाता है, ब्राजील में रोका एंड मलेशिया में लदांग कहा जाता है. सो वी विल टॉक मोर अबाउट शिफ्टिंग कल्टीवेशन in our next class. Shifting cultivation, nomadic herding and commercial farming, we will talk about these topics in our next class. Okay, so till now go through these chapters, go through these topics, read the chapter till page number 40, and if you face any problem, do let me know. Okay, thank you so much for joining the class everyone. Bye bye, take care of yourself.